Assalamu alaikum students. Today we will continue our chapter refraction of light. In this we will learn today something about total reflection and partial reflection. What is this? So what is the difference between refraction and reflection? See here, it is written over here reflection and it is written over here refraction. So what is the difference? Can you think? Whatever you have read, चलो उसको मेमोराइज करो वापस से फटाफट। क्या पढ़े थे? The difference between refraction and reflection. I have already in the beginning make your understand एक बार वापस से देख लेते शॉर्ट में एकदम। whenever ये क्या नॉर्मल बनाया, ओके? दिस इज द नॉर्मल। Whenever a ray of light coming from one medium and it is reflecting in that medium only, then it is called as reflection. Is going back in that medium only, it is called as reflection. If it's come in, penetrate into another medium, this is the medium A, this is medium B. If penetrate in another medium, this is called as refraction. Clear? The angle of incidence and angle of reflection, okay? Both are same. Suppose this is the I dash angle of reflection, both are same. This angle and this angle both are same. But this angle and this angle will not be same. This angle and this angle will not be same. Angle of refraction and angle of incidence will not be same. Clear? The ray of light coming from a rarer medium, from rarer medium to denser medium, optically denser medium, it will bend more toward the normal. It will bend more toward the normal. If the density is less, it will bend less. It will be less. Okay, so this is the basic thing you have to know. Suppose what I am doing, I am taking the ray of light from denser medium to rarer medium now. Denser medium to rarer medium now. What will happen? Since it is a rarer medium and this B is denser medium. When ray of light is going from denser to rarer, the angle of it, ये अभी क्या बन गया? Angle of refraction बन गया and it become angle of incidence, है ना? ये angle of incidence है, this is angle of refraction now. तो angle of I क्या होगा? Angle of incidence यहाँ पे क्या होगा? Smaller होगा और angle of R जो होगा वो bigger होगा. So when ray of light going from denser to rarer, so what will happen? It will bend more, क्योंकि वो क्या हो रहा है? rarer to medium में जा रहा है, from denser to rarer, तो angle of R will be more, है ना? Angle of R will be more. अगर सपोज ये और एंगल बना, है ना? मैं क्या किया यहाँ पे एंगल ऑफ I को ना मैंने और इंक्लाइन पुट किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्लाइन किया, तो ये और इंक्रीज हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज हो जाएगा. इसको और इंक्रीज किया मैंने और इंक्लाइन किया मैंने, तो ये और इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए. I अपॉन R जो सेकंड लॉ था, sin I अपॉन sin R, वो रेशियो सेम होना चाहिए. तो सेम होने के क्या हो रहा है कि जब एंगल ऑफ I इंक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ R भी इंक्रीज होगा, तभी तो रेशियो बराबर होगा. तो ऐसे करते करते अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है कि क्या हो रहा है कि इसके I का वैल्यू इतना लेते हैं, हम लोग इतना लेते हैं कि ये क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्या ये इसके बराबर हो जाता है. मतलब ये सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये पूरा सरफेस बन जाता है, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा. 90 डिग्री हो रहा है कौन? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का 90 डिग्री हो जा रहा है. एंगल ऑफ आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का इतना वैल्यू लिया मैंने, एक पार्टिकुलर वैल्यू लिया मैंने, जिसके वजह से
क्या हो रहा है कि ये एंगल ऑफ आर, इट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री, विल बी 90 डिग्री, है ना। मतलब कि एंगल ऑफ आई क्या x है, वो x की वजह से क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ r क्या हो रहा है 90 डिग्री हो जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है ये एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल स्टूडेंट? For the angle of incidence, for a particular value of angle of incidence, angle of refraction will be 90 degree. तो that angle will be called as, जो angle of incidence है उसको बोलते हैं, इसको नहीं। angle of incidence को क्या बोलते हैं, critical angle बोलते हैं। अब इसका इतना इंपॉर्टेंस क्या है क्रिटिकल एंगल का, कि now what will happen, come here and see, now what will happen कि आफ्टर लॉ आई विल इंक्रीज, सपोज ये 42 डिग्री है क्रिटिकल एंगल, सॉरी दिस एंगल इज 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, नाउ आई एम इंक्रीजिंग इट 43, आई हैव इंक्रीज्ड क्रिटिकल एंगल टू 43 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाउ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल इंक्रीज, है ना, 90 प्लस हो जाएगा। अभी 90 प्लस होगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल कम बैक इन दिस मीडियम ओनली, इन दिस मीडियम ओनली, है ना। ये क्रिटिकल एंगल सपोज ये मैंने बनाया, ये क्रिटिकल एंगल हमारा सी, और ये हमारा एंगल ऑफ, ये क्या हो रहा है, ये वापस से वही मीडियम में आ गया। कौन से मीडियम में, जो मीडियम से गया था। फॉर एनी एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, the refraction will be in that medium only from where it is coming। मतलब ये जो मीडियम B था, मीडियम B ही में वापस आ गया, तो it is not called as refraction now, it will called as reflection now। and ये particular reflection को हम क्या बोलते हैं, total internal reflection, total internal reflection it is called। let's see in the slide now, slide में we will learn more about it। थोड़ा particular more graphic is there, so more we will understand, is easy to understand for us। let's see, this is the denser medium, water is there, water क्या denser है, and air is rarer medium। we are taking a point, light source है, light source से many lights are coming, single rays are coming, and they all are bending, they all are bending, they all are bending। since it is going in the rare medium, it's bend more, है ना, away from the normal होगा, it is 90 degree, that way it's going straight। अब ये ज्यादा एंगल हुआ तो ये ज्यादा बेंड हुआ, ये इसका एंगल और हुआ मोर है तो ये मोर बेंड, ये और मोर हुआ तो और बेंड हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अब इसमें क्या पता है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन तो हमें नहीं देखने का, हमें क्या देखने का कि एक पार्टिकुलर एंगल है, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या हुआ, रिफ्लेक्शन इट इज रिटन, इट इज नॉट रिफ्लेक्शन, दिस इज, अच्छा यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे लिखा हुआ, ओके, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, सो रॉन्ग रिटन ओवर हियर, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज रिफ्लेक्शन, तो कमिंग बैक इन सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ये क्या हो रहा है, वापस से सेम मीडियम एंटर किया तो रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब कि लाइट क्या हो रहा है, जा रहा है तो उसमें से कुछ क्या होगा, वापस से नहीं क्या होगा, वही मीडियम में आ जा रहा है, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन है। तो इसमें हम वी आर नॉट गोइंग इन पार्शियल रिफ्लेक्शन मच, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या है, वही इसमें आ रहा है, वापस से जो मीडियम में था वही मीडियम में रिटर्न आ गया। As the light going from denser to rarer, it bend away from the normal। नॉर्मल से क्या हो रहा है, ज्यादा बेंड हो रहा है ना, यहाँ पे एंगल कम था, ये एंगल ज्यादा हुआ, और ज्यादा इंक्लाइन हुआ, और ज्यादा हो गया। फॉर आई द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई is smaller than the angle of reflection, है ना, refraction is here, clear। तो I is there, I is smaller and R is bigger। I का वैल्यू मैंने क्या किया, इंक्लाइन किया तो I का वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो R का वैल्यू इंक्रीजेस मोर, यहाँ पे और इंक्लाइन किया तो I के वैल्यू इंक्रीजेस, तो R का वैल्यू और ज्यादा हो गया।
If increases I and R will increase accordingly to the Snell law as their respective index is constant. जो I और R का वैल्यू जो भी है लेकिन वो कांस्टेंट होगा. For a particular value of I, the value of R become equal. एक particular value के लिए क्या होगा वो जिस यहाँ पे बता रहा है ना. यहाँ पे क्या हुआ, अब ये क्या हुआ 90 डिग्री बन गया. R का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री बन गया. अब ये R के वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, 90 डिग्री हो रहा है तो ये I के वैल्यू क्या बोले हम लोग, IC. IC मींस इट्स अ क्रिटिकल एंगल. इट्स अ क्रिटिकल एंगल. ये I की वैल्यू को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को वी आर सेइंग क्रिटिकल एंगल. After 10-15 minutes it will open. Okay, come after go stand. कितने इन्हें साइलेंट है. This called as total internal reflection. हाँ, अभी जो when the light, अब ये देखो I का वैल्यू मैंने और इंक्रीज कर दिया. What is it doing? I का वैल्यू IC से मतलब क्रिटिकल एंगल से अब इंक्रीज कर दिया. तो what will happen? R का वैल्यू इंक्रीज हो गया. अब जब R का वैल्यू 90 एबव होगा तो 90 एबव होगा तो क्या होगा, यही मीडियम में है ना वाटर में वो वापस रिटर्न आ जाएगा. तो नाउ इट इज कॉल्ड एज व्हाट इज गोइंग ऑन, इट्स अ रिफ्लेक्शन. इट्स अ रिफ्लेक्शन. तो इट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाउ सेम मीडियम में था, सेम मीडियम में वापस आ गया. तो इट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ I व्हिच इज ग्रेटर देन IC. IC मींस क्रिटिकल एंगल. तो जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा I का वैल्यू इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो क्या होगा क्रिटिकल एंगल होगा. और ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा की वैल्यू को क्या होगा, वो वापस से लाइट क्या होगा वही मीडियम में वापस आ रहा है. तो ये जो अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. ये we can determine the value of critical angle as follows. Critical angle का value determine थे, but is this written over here 1 eta 2, मतलब कि refractive index of medium 1 with respect to 2. तो sin I upon sin R total internal reflection क्या हो रहा है. अब I का वैल्यू हमें फाइंड करने का क्रिटिकल एंगल का. R का वैल्यू क्या है 90 है. R का वैल्यू 90 है तो sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है. तो यहाँ पे क्या हो गया sin I हो गया. Moise keep quiet. So this is the critical angle now. Now we will learn about rainbow. Rainbow is a natural phenomena we see and it's a very beautiful, we all know. So very beautiful नेचर से ना. अब यहाँ पे जो हो रहा है ना कि बहुत सारे जो फिजिक्स की लाइट के फेनोमेना यूज हो रहे हैं. यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्शन भी हो रहा है. लेट्स सी रेनबो. It is a combined effect of number of natural process. What are the process? They are dispersion. Dispersion means what? White ray of light is scattered into 7 band. Refraction, you already know, bending of light, and the total internal reflection is also there. The use of total internal reflection is also happening. मतलब three processes are dispersion, refraction, and total internal reflection is also going on. Combined effect, they are producing rainbow. It can be mainly seen. अच्छा रेनबो कब दिखता है भाई? Just after rainfall, है ना. रेनफॉल होता है और सनलाइट इज देयर, रेनफॉल इज देयर. अभी हुआ था रेनफॉल, तो we will find rainbow in the sky. Small droplet of water act as a, अब यहाँ पे क्या है कि water act as a prism. Prism के बारे में already we have read. Prism क्या करता है कि ray of light को disperse करता है. ray of light को disperse कर रहा है
and prism and water, tiny droplet of water, they are acting as prism. तो ये prism यानी कि tiny droplet of water, they will disperse the light. मतलब light ray sun rays क्या होगा, वो 7 band of color में scatter होगा. Moiz and Alam, will you shut up or not? It can mainly seen after rainfall. Small droplet of water act as a small prism, है ना. ये जो droplet है, जो droplet which are in the atmosphere, है ना. When rays are coming, they scatter and they are getting total internal reflection, and after that they are getting reflected. So these droplet they are forming rainbow in the sky. See here. और एक बार डायग्राम देखते हैं. द व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट जो है दे आर गेटिंग डिस्पर्स. अब ये डिस्पर्स जो है शो नहीं कर रहे ताकि अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, जब व्हाइट लाइट रे ऑफ लाइट आया तो यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है प्लस डिस्पर्स हो रहा है. यहाँ पे है ना, डिस्पर्शन हो रहा है. तो इट इज इंडिकेटेड बाय कलरफुल ना. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. मतलब जो रे ऑफ लाइट अभी मीडियम कौन सा है इसका, वाटर है. तो ये वाटर में वापस क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है ना. ये दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो भी हम लोग पढ़े. अगेन नाउ कम हियर एंड इट इज रिफ्लेक्टेड नाउ, इट इज रिफ्लेक्टेड नाउ. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना. तो दिस इज द बैंड ऑफ कलर, द रेड इज अपर एंड द वायलेट इज बिलो. तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्शन हुआ ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ रेड का वायलेट का, अगेन यहाँ पे आके रिफ्लेक्टेड हुआ, इट बिकम पैरेलल. तो ये फॉर्मेशन जो हमें दिखेगा, दिस विल गिव रेनबो इफेक्ट. I have already taught you in the light class, and this is another CM. The rainbow formation, these three processes together produce the rainbow. Some numericals are there. So, for example, the absolute refractive index is this much, 1.36. What is the refractive velocity of light in water? The velocity of light in vacuum is given. तो ये आपको याद नहीं करने का रहेगा. वैक्यूम का आप याद कर लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. रेस्ट आपको जो स्पीड आपको मिल जाएगा. तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज v1 इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.36 है. तो द फार्मूला इज n अपॉन v1 अपॉन v2 है ना. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम अपॉन इन वाटर. तो वैल्यू हमने पुट कर दिया एयर का, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड v2. व्हाट विल हैपन, इट विल गो हियर एंड इट विल कम हियर, इट विल डिवाइड. सॉल्व करो इसको, यू विल गेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.21 मल्टीप्लाई कर 10⁸ मीटर पर सेकंड. याद रखना यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर को ऊपर कर रहे हैं और वाटर को नीचे रख रहे हैं. Second, light travel with the velocity this much in a medium. On entering in second medium, the velocity becomes this much. What is the refractive index of second medium with respect to the first medium? Second medium का रिस्पेक्ट बोला ना, तो second medium को हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे, first medium को के स्पीड को क्या करते हैं ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में. तो velocity of given velocity of first medium is this one, and velocity of second medium is 0.75. Always check the unit. Is this much. The refractive index of second medium with respect to first medium, है ना. सेकंड मीडियम का पूछ रहा है, सेकंड मीडियम इज दिस मच. तो सेकंड मीडियम को क्या कर रहे हैं, इसका स्पीड को नीचे रख रहे हैं और फर्स्ट मीडियम के स्पीड को क्या कर रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं. नाउ वी विल डिवाइड इट, you will get the answer now. The answer is 2. The refractive index of second medium with respect to first medium is 2. So this is the end of the chapter now. Hope you understood. Or if any query is there, just WhatsApp me and we will start inshallah next lecture again. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.